دور دراز کے علاقوں سے ہائی کورٹ آنے والے سائلین کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ گورنر پنجاب نے ضابطہ فوجداری ترمیمی آرڈیننس 2023 کے نفاذ کی منظوری دے دی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی منظوری کے بعد بھکر، میاں والی، لوتراں اضلاع کو لاہور ہائی کورٹ کے نزدیک ترین بینچز کے دائرہ اختیار میں شامل کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے بار ایسوسی ایشنز کے مطالبے پر سمری کی منظوری دے دی۔ ضلع بھکر کو لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ، ضلع میاں والی کو راولپنڈی بینچ اور ضلع لوتراں کو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے دائرہ اختیار میں شامل کیا گیا ہے۔ سائلین کو ان کے علاقوں سے نزدیک ترین بینچز میں مقدمات کی پیروی میں سہولت حاصل کی جائے گی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی منظوری کے بعد بھکر، میاں والی، لوتراں اضلاع کو لاہور ہائی کورٹ کے نزدیک ترین بینچز کے دائرہ اختیار میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور احسن اقدام، لائف سٹاک کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ مفید مادہ جانور کو ذبح کرنے پر پابندی عائد، بیماریوں سے پاک جانوروں کے زون قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، لائف سٹاک کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ صوبہ بھر میں مفید مادہ جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، بیماریوں سے پاک جانوروں کے زون قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے لائف سٹاک کی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے 4 روز میں حتمی پلان طلب کر لیا۔ صوبائی وزیر، سیکرٹری لائف سٹاک، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، کمشنر ڈی جی خان اور بہاولپور پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی لائف سٹاک سیکٹر کی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جامع تجاویز اور سفارشات پیش کرے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی مکمل کر لی۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے الگ الگ افسران مقرر کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری، ضلعی ریٹرننگ افسران، آروز اور اسسٹنٹ آروز کی تعیناتی کا مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ افسران اپنے شیڈیول کے مطابق فرائض سر انجام دیں گے۔ انتخابی ڈیوٹی دینے والے افسران کے تبادلے پر پابندی لگا دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے الیکشن ونگ میں تعطیلات ختم، آئندہ ہفتے افسران کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوگا۔ 38 مقامات پر افسران کی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے 17 اضلاع میں قومی اسمبلی کی 57 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 116 سیٹیں ہیں۔ ہر حلقے میں 1 ریٹرننگ افسر جبکہ 2 اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کا تقرر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آروز کی تعیناتی کر کے عام انتخابات کا ایک اہم مرحلہ مکمل کر لیا۔ صوبائی حلقوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کو ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا ہے، جو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونے کے بعد امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کریں گے۔ پولنگ سے رزلٹ تک الیکشن کے تمام مراحل کی نگرانی بھی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہاں بات کریں گے جنرل الیکشن کے حوالے سے۔ جنرل الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی تعیناتیوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن 2024 کے لیے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پی پی 91 منکیرہ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید کو ریٹرننگ آفیسر تعینات کر دیا۔ این اے 181 تحصیل چوبارہ اور تحصیل کروڑ میں انم اکرم ریٹرننگ آفیسر، عامر عباس اور شیخ آصف حسین اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر حسن نذیر پی پی 281 چوبارہ کے ریٹرننگ آفیسر، مہر گل شیر اور محمد ناصر اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر مقرر کیے گئے۔ این اے 152 شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر فیاض علی جتالہ ریٹرننگ آفیسر، احسن اویس اور مزمل حسین اسسٹنٹ مقرر کیے گئے۔ پی پی 221 رضوان سلیم ریٹرننگ، فیصل مسعود اور مسرت بی بی اسسٹنٹ مقرر کیے گئے۔ پی پی 222 میں قمر الزمان کیسرانی آر او، ملک فیض رسول اور یوسف علی خان اے آر او مقرر کیے گئے۔ این اے 184 کوہ سلیمان کے لیے محمد اسد چانڈیا آر او، محمد متین اور سمیع اللہ اے آر او ہوں گے۔ این اے 185 کے لیے رضوان نذیر آر او جبکہ جمعہ خان لاغاری اور محمد زاہد فاروق اسسٹنٹ ہوں گے۔ این اے 186 کے لیے کریم بخش آر او، چودھری شاہد سلیم اسسٹنٹ مقرر۔ پی پی 286 میں عثمان غنی ریٹرننگ آفیسر، محسن مقصود اور ظفر حسین اے آر او مقرر۔ پی پی 287 میں حق نواز خان ریٹرننگ، ریاض حسین ملغانی اور محمد سبتین الیاس اسسٹنٹ مقرر۔ پی پی 288 میں بابر بشیر آر او، ایوب بخاری اور فیاض حسین خوسا اسسٹنٹ مقرر۔ پی پی 289 میں فخر الاسلام ڈوگر آر او جبکہ ذوالقرنین حیدر اسسٹنٹ مقرر۔ پی پی 290 میں زاہد اقبال گجر ریٹرننگ آفیسر اور محمد شاہد اور راجہ شہریار اسسٹنٹ مقرر کیے گئے۔ پی پی 291 میں وسیم اختر جتوئی آر او جبکہ عطا اللہ عزیز اور چودھری محمد حنیف اسسٹنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔
खुशाब NA 87 में अहमद सुहेब रिटर्निंग, जबकि इकबाल अहमद अवान और मोहम्मद हफीज असिस्टेंट मुकर्रर। NA 88 में अमीर तैमूर RO, सुहेल सिकंदर, मोहम्मद रमजान असिस्टेंट मुकर्रर किए गए। NA 81 में इरफान मार्टन RO, जफर अब्बास भट्टी और मोहम्मद नवाज अवान असिस्टेंट मुकर्रर। PP 82 में मोहम्मद एजाज रिटर्निंग ऑफिसर, मखदूम शाहिद इकबाल और कलीमुल्लाह खान असिस्टेंट मुकर्रर। PP 83 में साद बिन खालिद RO, फयाज हसन और खुर्रम शहजाद ARO मुकर्रर किए गए। PP 84 मोहम्मद अवैस रिटर्निंग, जबकि हसनैन अब्बास शाहिद महमूद असिस्टेंट होंगे। जामपुर में डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। NA 187 के लिए अली आतिफ RO, फयाज हुसैन और मोहम्मद सुहेल खान असिस्टेंट मुकर्रर किए गए हैं। NA 188 में सफातुल्लाह रिटर्निंग, जबकि अजहर हुसैन और मोहम्मद आसिफ असिस्टेंट मुकर्रर। NA 189 में मोहम्मद कासिम रिटर्निंग, जबकि अता हुसैन और रुझान शाहिद हुसैन असिस्टेंट मुकर्रर। PP 292 में मोहम्मद अफजल खोसर रिटर्निंग, यूसुफ तशफीन और सजाद हुसैन असिस्टेंट मुकर्रर। PP 293 में एहसान अहमद रिटर्निंग, अब्दुल समद शबीर और एजाज उल गफ्फार असिस्टेंट मुकर्रर, जबकि PP 294 मोहम्मद नदीम बारी रिटर्निंग, हबीबुल्लाह और मोहम्मदपुर असिस्टेंट मुकर्रर। PP 295 में मोहम्मद आमिर रिटर्निंग, मोहम्मद तलहा साजिद और इब्रार अहमद ARO मुकर्रर। PP 296 में मोहम्मद फैसल रिटर्निंग, जबकि आबिद हुसैन शाकिर और मोहम्मद उस्मान ARO मुकर्रर। ख्वाजा मोहसिन रसूल को PP 297 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की किल्लत, डिवीजन में 1500 से जायद फीमेल जबकि 16 से जायद मेल असातिज़ा की सीटें खाली हैं। जिला मुल्तान के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा और दर्जा चहारुम के मुलाजमीन की किल्लत, डिवीजन में 1500 से जायद फीमेल जबकि 16 से जायद मेल असातिज़ा की सीटें खाली पड़ी हैं। गुज़श्ता 4 साल से दर्जा चहारुम का एक भी मुलाजिम भर्ती नहीं किया गया। टीचर की कमी के बायस मुस्लिम स्कूल के असातिज़ा और तलबा परेशान हैं। दूसरे मुलाजमीन भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है हमारे लिए। तो असातिज़ा की शदीद कमी और जो है इसी तरह जो मुलाजमीन हैं उनकी शदीद कमी, एक तो स्वीपर नहीं है, दूसरा हमारे पास माली की कमी है। स्कूल में टीचिंग की कमी की वजह से बहुत एजुकेशनल खला आ जाता है। देखिए क्लास में जब टीचर ही नहीं होगा तो वो फिर कैसे क्लास चलेगी, कैसे पढ़ेगी, वो सारा साल मसाइल जो रहते हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। एक टीचर जो है वो क्लास में बैठता है, बच्चे उसके साथ मुतवज्जो होते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है। अब क्लास में टीचर का ना होना जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है। ओवरऑल जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान में कमी है। और हमारे स्कूल में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इधर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे कि माली हैं, स्वीपर हैं, अब आप ये देखें इतना बड़ा ये स्कूल है, हालांकि ये तारीखी इस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप ये देखेंगे इधर सिर्फ एक स्वीपर है। असातिज़ा ने बताया कि 5 में से सिर्फ 2 स्कूलों में माली मौजूद हैं। मुस्लिम स्कूल में भी सिर्फ एक ही माली है। एक तरफ ग्रीन एंड क्लीन मुहिम पर जोर दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब मालियों की किल्लत है। फंड्स ना होने की वजह से स्कूलों की तज़ीनो आराइश भी नहीं हो सकती। हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, इसी वजह से बाज़ औक़ात हमारी क्लास कमांड होती है, जिसकी वजह से हमारे पढ़ाई का नुकसान भी होता है। और 2-3 क्लासें इकट्ठी मिलकर बैठती हैं, जिसकी वजह से टीचर एक होता है और ना एक क्लास पढ़ सकती है ना बाकी बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल में एक ही स्वीपर है और वो एक जगह से सफाई करके जाता है तो वहाँ पे गंद आ जाता है, दूसरी जगह जाता है तो उस जगह पे गंद आ जाता है। इस तरह सफाई भी बिल्कुल साफ़ नहीं होती है और वॉशरूम वगैरह में भी सफाई नहीं होती है क्योंकि एक ही स्वीपर है। यहाँ पे माली है ही कोई नहीं तकरीबन। वो मैं वाटरमैन की सीट पे हम ये काम कर रहे हैं। जितना इतना बड़ा स्कूल है, 1-2 आदमी क्या कर सकता है यहाँ पे। दूसरी जानिब स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों के आगाज पर तलबा और असातिज़ा खुश हैं। कहते हैं स्कूलों में बेहतरीन ग्राउंड बनाने से बच्चों को खेलों में बेहतरीन मौके मिलेंगे। कैमरा टीम के हमरा रिशबा आसिफ, मुल्तान। तालीमी बेहतरी के दावों का पोल खुल गया। जनूबी पंजाब के स्कूलों को असातिज़ा की किल्लत का सामना। बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान और मियां वाली में हजारों सीटें खाली। बहावलपुर के स्कूलों को असातिज़ा की किल्लत का सामना। 1186 स्कूलों में 30% असातिज़ा की कमी। 2017 से अब तक एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। 252 मिडिल स्कूलों में 40%, जबकि 226 हायर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा की कमी 50% तक पहुंच गई है। सीओ एजुकेशन अकरम चौधरी ने बताया कि 1186 में से सिर्फ 11 स्कूल 4 दीवारी से महरूम हैं।
डेरा गाजी खान में भी असातिज़ा की किल्लत के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। 2017 के बाद एक भी भर्ती नहीं किया गया। लगभग 3000 के करीब सीटें खाली पड़ी हैं, जबकि असातिज़ा की रिटायरमेंट से मजीद सीटें खाली हो जाएंगी। सीओ एजुकेशन ने बताया कि कमी पूरी करने के लिए दीगर स्कूलों से असातिज़ा को नेट बेस पर लाया जाता है। रहीम यार खान के 2780 सरकारी स्कूलों में असातिज़ा, स्टाफ और कमरों की शदीद कमी है। पंजाब टीचर यूनियंस के सदर राना शहबाज सफदर ने बताया कि असातिज़ा की 8000 सीटें खाली हैं। प्राइमरी स्कूलों की 6 क्लासेस के लिए सिर्फ 2 कमरे होते हैं, जबकि 50% से ज्यादा स्कूलों में सफाई स्टाफ मौजूद नहीं। मियांवाली में भी तालीमी बेहतरी के दावे ठोस हो गए। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल रफीकाबाद में बारिशी पानी जमा होने लगा। हरनौली पिपना रोड की तामीर से स्कूल नशेब में आ गया। वालिदैन ने बताया कि बारिश के दौरान बच्चे स्कूल ही नहीं आते। ये सिलसिला 3-4 साल से जारी है। चनीगोट की बस्ती अराई का प्राइमरी स्कूल भी 4 दीवारी से महरूम है। आवारा जानवरों ने स्कूल में डेरे जमा लिए। बच्चे और स्टाफ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तलबा ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान शहर में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गए। नवाबपुर रोड को 3 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर ना किया जा सका। मुल्तान शहर में 3.5 साल से रुके तरक्याती कामों का आगाज ना हो सका। नवाबपुर रोड को 3 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद तामीर और मुरम्मत ना किया गया। इस सड़क को 3 साल से जायद अरसा पहले सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था। इलाका मकीन कहते हैं कि इस सड़क को कभी वासा तो कभी किसी और महकमे ने कई मरतबा तोड़ा है। नवाबपुर रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सड़क पर गर्दो गुबार होने की वजह से सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस रोड पे बेपनाह एहतजाज भी किए हमने, कमिश्नर को नोटिस भी दिया। 3 साल से इलाका मकीन बहुत परेशान है। 4000 से ज़ायद दुकानदार ताजिर हजरात की जो मुश्किलात वो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कारोबार भी ठप कर दिए, यहाँ से चले गए। उसके अलावा यहाँ से जो गुजरने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, शहरी हैं, वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हमने कई मरतबा एहतजाज किया, शिकायत भी दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गर्दो गुबार और टूटी हुई सड़क की वजह से अब गाहक भी यहां आने से कतराते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी इस सड़क को बनाने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। यही है कि हमारा रोड बनवा दो, और क्या कहना है हमने। ये बिल्कुल जो है ना टूटा बना हुआ है कि कारोबार नहीं है, बिल्कुल बहुत तंग हैं हम। और क्या कहेंगे हम, यही कहेंगे। और इलाका मकीनों और दुकानदारों ने जल्द से जल्द नवाबपुर रोड को मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली मुल्तान शहर का सबसे बड़ा मंसूबा हेड मोहम्मद वाला का रोड का काम सुस्त रवि का शिकार है। हेड मोहम्मद वाला रोड का काम 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल ना किया जा सका। मुल्तान में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली शहर के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे का काम सुस्त रवि का शिकार। हेड मोहम्मद वाला रोड 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। 12 किलोमीटर रोड का ये मंसूबा 1 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार होने से ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल ना होने से यहाँ का कारोबार भी खत्म हो गया है। तो बिल्कुल सुस्ती से काम हो रहा है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। बिल्कुल ये मतलब नहीं अच्छा काम कर रहे, बिल्कुल स्लो हो रहा है काम। जिस तरह मतलब बाहर से लोग आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना होता है। अब यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा खूब हो जाता है। लाइटिंग का भी नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम है। तो कल भी इधर एक मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला, कोई ऐसे स्पीड में आते हैं तो एक औरत भी गिरी गई खड्डे के अंदर भी। जब ये रोड, जब आपके पास फंड नहीं है, कोई ऐसा मसला मसाइल है, तो आप उसको शुरू ही ना करें। शहरियों का कहना था कि हेड मोहम्मद वाला का काम सुस्त रवि का शिकार होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। एक तरफ रोड तंग है और दूसरी जानिब सड़क पर बड़ी गाड़ियां खड़ी की गई हैं। तो जितने भी पुल हैं सारे रुके हुए हैं। ये काम की वजह से बिल्कुल परेशानी हो रही है। जो अगले दिन भी यहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी जो गटर के अंदर गिरी है। रात को 12 बजे ये 1122 वाले आए हैं, उन्होंने निकाली है। फिर उसके बाद बकरियों का रेवड़ जा रहा था, बकरी उसके अंदर गिर गई। बकरी की वजह से बहुत परेशानी हुई, लोग टेंशन में आते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सीट को डाउन साइज करने का मामला। 19वें ग्रेड की सीट को डाउन साइज करके 18वें ग्रेड में तब्दील कर दिया गया।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान में चीफ ऑफिसर की सीट को डाउन साइज कर दिया गया। चीफ ऑफिसर की 19 ग्रेड की सीट को 18 ग्रेड में तब्दील कर दिया गया। कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने सीट को डाउन साइज करने और 18 ग्रेड ऑफिसर तैनात करने पर एहतजाज किया। ग्रेड 18 के राना महमूद आलम को कॉर्पोरेशन का नया चीफ ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। डिप्टी चेयरमैन एपका यूनियन जनूबी पंजाब का कहना है कि 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में 18वें ग्रेड का अफसर तैनात करना नाइंसाफी है। कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग ऑफिसर 19 स्केल के हैं, जबकि चीफ ऑफिसर 18वें स्केल का तैनात किया गया है। जो चीफ ऑफिसर 19 स्केल की सीट थी उसको डाउन ग्रेड करके, और गुजरात जो मुल्तान से छोटा है और आबादी के लिहाज से भी मुल्तान से बहुत छोटा है, और उसकी सीट को उन्होंने 19 स्केल की सीट कर दिया गया है। तो मेहरबानी करके इस नोटिफिकेशन को खत्म करें। डिप्टी चेयरमैन एपका यूनियन का मजीद कहना था कि नए तैनात ऑफिसर करप्शन के चार्जेस की वजह से मुतनाज़ा हैसियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब से गुजारिश है कि इस नोटिफिकेशन को फौरी वापस लिया जाए और यहाँ पर 19वें स्केल का ऑफिसर तैनात किया जाए। 19वें स्केल की सीट है, इसके ऊपर 18 स्केल का आदमी लगा के, और इसका सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड ये है कि मुजफ्फरगढ़ में 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इसने फराड किया है। ये फराड करके जेल में चला गया है। पीछे छोटे एहलकार जो है ना वो जेलों में भुगत रहे हैं। ये आके हमारी कारपोरेशन में बतौर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर के काबिल भी नहीं है, उसको लगा दिया। कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि मुल्तान में मुतनाज़ा शख्सियत वाले अफसर को तैनात न किया जाए और सीट को 20वें स्केल में अपग्रेड कर दिया जाए। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। हारूनाबाद में दीगर अशिया खुरनोश के साथ सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। शहर की मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हारूनाबाद शहर में बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरियों की चीखें निकल गईं। मार्केट में प्याज 120, लहसुन 600, अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर 80 और गोभी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। मैं मटर लेने आया था जी, मटर है 120 रुपए किलो। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि वो महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। हर शहरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सब्जी पकाना। और आलू को देख लें, ठीक है, ये बड़ा मसला बन गया गरीब बंदे के लिए जी। दूसरी तरफ सब्जी फरोशों का मौकफ है कि मंडी से महंगे दामों सब्जियां खरीदते हैं और आढ़त का खर्चा भी उठाना पड़ता है। हमारी मजबूरी है कि हमें आड़तों का खर्चा और दुकानों का खर्चा, मुलाजमों का खर्चा, ये सब इसमें मैनेज होता है, इसलिए हम मजबूर हैं। हमें जो महंगाई ऊपर से होती है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मजबूर हैं, इसलिए हमें मजबूरी से ये बेचना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। हासिलपुर तहसील इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। तहसील भर में खाद की ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी है। हासिलपुर तहसील इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली। इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। तहसील भर में खाद की महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त जारी है। वकला बरादरी ने किसानों से इजहार हमदर्दी करते हुए अदालतों का बाइकाट कर दिया। हमारे जो किसान है वो इंतहाई मुश्किलात का उनको सामना है। ख़ास तौर पे जो खाद का बहरान है उसने तो किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। और फसलात के जो रेट हैं वो भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि फसलात के रेट जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और जो खाद है, जो उनकी ज़रूरियात है, वो दिन ब दिन उसका ना सिर्फ रेट अप हो रहा है बल्कि वो उनकी पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। एक ही फार्मूला है, किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। जब तक इंतज़ामिया जो है वो डीलरों के साथ मिल के खाद ब्लैक करती रहेगी और अपना हिस्सा लेती रहेगी, उस वक्त तक कोई सलूशन नहीं निकल सकता। किसान जो है लाइनों में लगे हुए हैं, किसी को जमाबंदी देख रहे हैं, किसी के साथ वो खसरा गिरदावरी देख के जो 1-2 बोरियां जलील करके दे रहे हैं। बरवक्त खाद न मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। वकला बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब से खाद की कंट्रोल रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर।